So in the previous session, we studied till Sutra 282, अन्य प्रत्यय राम धातु का. Now, Parapadani Kartari. The Parapada pratyayas are applied after dhatu in Kartari Prayoga. So we studied that like we have 10 groups of pratyayas, right? Achyuta, Vidhatri, Vidhi, Bhuteshwar, Bhutesha, Adhokshara, Balakalki, Kamapal, Balakalki, Kalki, and Ajita. Now, each of them is divided further into two parts, Parapada Pratyaya and Atmapada Pratyaya. Now, the sutra says that, so basically these next 3-4 sutras, they are telling when do we use Parapada Pratyayas and when do we use Atmapada Pratyayas, and when do we use like both. So, this sutra says the Parapada Pratyayas are applied after Dhatu in Kartari Prayoga. Dhatu means a verbal root, a verb. Now, Kartari Prayoga, Prayoga means usage, and Kartari means doer, karta, subject, doer. Like in English, we have active voice. So this Sanskrit Kartari Prayoga is similar to active voice in English. Let's read Sankshodhani. The commentaries explain that in the sutras, words like Kartari, Karmani, Bhave, and so on really mean Kartari Vachya, Karmani Vachya, Bhav Vachya, and so on. So Kartari Vachya means when the karta is to be expressed. So when in a sentence, the highlight is on the karta, on the doer. Like Ram is eating the fruit. So the highlight, the focus is on the doer. If I say the fruit is being eaten by Rama, then the focus is on fruit, which is the object. So active passive voice. So when the doer is focused, karta is focused, then we use kartari vachya. It is called kartari vachya or kartari. And when the karma is the focus, when the karma is to be mainly expressed, then that is called karmani vachya or karmani prayoga. Like the fruit is being eaten by Rama. This is an example of karmani vachya, passive voice. And then there is third bhava vachya, when the bhava is to be expressed. In this third bhava vachya, bhave vachya, there is no main focus on karta or karma. The main focus is on the kriya itself. For example, let's say if I commit a mistake against someone and I go in front of him and I say, please forgive me. Like in Sanskrit, I say, kshamyatam, please forgive me. Now, in that sentence, that word kshamyatam, please forgive me, there is no focus on doer, there is no focus on karma. The focus is on the verb itself, that is forgiveness. So that is an example of bhava vachya. When the bhava, which means the meaning of the dhatu itself is focus. So the terms kartari prayoga, active voice, karmani prayoga, passive voice, bhave prayoga, impersonal passive voice, and so on are commonly used to express the same respective notions. The terms kartri vachya, karma vachya, and bhav vachya, and so on, which have the same respective meanings, are also occasionally used for this purpose. But in this edition, we will translate kartri as and so on as in kartri prayoga and so on. So basically, Sankshodhana is telling the methodology which they are using throughout this book. They will not say kartri prayoga or kartri vachya. They will mostly say kartri, karmani, or bhave, which means kartri vachya, karmani vachya, and bhave vachya, or kartri prayoga, karmani prayoga, or bhave prayoga, respectively. They won't say the full thing, only kartri, karmani, and bhave. So we should be able to understand, okay, kartri means this, karmani means this, and bhave means this. So when we have a dhatu, and if we want to express it in kartri prayoga, active voice, then parapada pratyayas are applied. Like Ram is studying, so we'll say Ramah Pathati.
Ramah Pathati. Now, Pathati iti is a Parapada Pratyay, Tipta Santi, Achyut. Tipta Santi, tip. So the focus, the highlight is on doer. So that's why we used Parapada Pratyay. We'll understand more about it later. For the time being, the Parapada Pratyas are applied after a dhatu in active voice and Kartari Prayoga. Then Atmapadibhya Atmapadani Nitascha. The Atmapada Pratyayas are applied after Atmapadi dhatus and after dhatus which have the indicatory letter ma. So this is simple. Now there is one more thing. We studied how we have Parapada Pratyayas and Atmapada Pratyayas, right? Parapada suffixes and Atmapada suffixes. We also have dhatus, which some dhatus are Parapadi dhatus and some dhatus are Atmapadi dhatus. So there is also segregation in dhatus also. There is segregation in the suffixes and there is also segregation in the dhatus themselves. So we have some dhatus which are Parapadi dhatus and we have some dhatus which are Atmapadi dhatus. And then there is also third category, Ubhayapadi dhatus. Ubhayapadi means some dhatus, they take both Atmapada and Parapada. Ubhaya means both. So after Atmapadi dhatus, we apply Atmapada pratyas. And if we have dhatus which have the indicatory letter nga in them, after them also we can use or apply Atmapada pratyas. These usages we will be able to understand as we begin the declensions, the formations. Sankshodhani says, 3 kinds of dhatus are listed in the dhatu part. Dhatu part is a work where all the dhatus are written together. Dhatu part. And Jiva Goswami also did one for Harinamamrita, Vyakarana. So there are 3 kinds of dhatus in dhatu part. One, Parapati dhatus, which means dhatus which take the Parapada endings in Kartari Prayoga. Dhatus which take the Parapada endings in Kartari Prayoga. Then second is Atmapati dhatus. Dhatus which take Atmapada endings in Kartari Prayoga. And then Ubhapadi dhatus are dhatus which take either Parapada endings or the Atmapada endings in Kartari Prayoga. This may be a bit technical, and if it is, no problem. It can take some time to go in. So we'll be actually discussing it often as it will come ahead. Actually, I will come back to this again after we do a couple of sutras. Sorry, a couple of dhatus. It will be clearer more then. Then Ubhayapadibhya Ubhayapadani Nitascha. Both Parapada and Atmapada pratyas are applied after Ubhayapadi dhatus and after dhatus which have the indicated letter nya. So if we have a Ubhayapadi dhatu, then we can apply both Parapada Atmapada pratyas, or we can apply Parapada Atmapada after a dhatu which has the indicated letter nya in it. This is all theory. We'll see the practical ahead. Atmapadani eva karmani. Only the Atmapada pratyas are applied after dhatu in karmani prayoga. In passive voice, it can be any dhatu. We will just apply Atmapada pratyas. This is quite simple actually. When we do it. Then Atmapada prathama purushaika vachanam eva bhave. Only the Atmapada prathama purusha ekvachana. So that is Atmapada 1.1 is applied after a dhatu in bhave prayoga. Bhave prayoga when we want to indicate the meaning of the dhatu itself. Bhava means dhatu artha, the meaning of dhatu. Okay, we'll begin the conjugation, the declension. So in this regard, the conjugations of the Parapadi dhatus in the Bhwadi Gana will be shown henceforth. So Jiva Goswami is beginning with the first Gana, that is Bhwadi Gana, out of the 10 Ganas, right? And
Even in Bhuadigana, he is beginning with the Parapadi dhatus. Remember, we have 10 ganas. Bhuadi, Adadi, Jhotyadi, Divadi, Swadi, Tudadi, Rudhadi, Tanadi, Kriyadi, Churadi. 10 ganas. In each gana, there are many dhatus. And in each gana, there are Parapati dhatus, Atmapati dhatus, and Ubhayapati dhatus. Remember that. In each gana, we have those classifications. So now Jiva Goswami is beginning with Bhadi gana, and he's beginning with the Parapati dhatus of Bhadi gana. He's beginning with those dhatus which are Parapati dhatus in Bhadi gana. So the first dhatu Jiva Goswami is taking is Bhu Sattayam. This is the dhatu which I have highlighted here. Please note it. I mean, may not be on book or notebook, but mentally. The pattern is the first word here, this bhu, is actually the main verb, the verbal root. And the second word you see is just an explanation of that verbal root, that what it means. And if you see, the second word is in seventh ending. This is 7.1, like Radhayam. 7.1. Satta became Sattayam. So this is a pattern throughout. There will be a verbal root given, and then there will be a Sanskrit equivalent given, which will express the meaning of it. And sometimes a dhatu can have more than one meaning. So satta means existence, to exist. So bhu means to be, to become, or to exist. Okay. So satta vidyamanta. So we begin with the bhu dhatu. Bhu. Okay. So bhadi parapada prakriya. The section on the parapadi, first class verbal roots. Yes, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी लास्ट सूत्र में ये था कि आफ्टर दिस आत्मा पद प्रथम पुरुष एक वचन इज अप्लाइड आफ्टर धातु इन भावे प्रयोगा। सो भावे I'm sorry. प्रभु जी लास्ट में भावे प्रयोग शब्द आया था, तो उसका अर्थ नहीं अच्छी तरह समझ लगा। भावे का मतलब पीछे लिखा हुआ था इम्पर्सनल पैसिव वॉइस, बट उससे अच्छी तरह पता नहीं लगा। हाँ, तो भावे प्रयोग मतलब भाव का मतलब हुआ धातु का अर्थ। भाव का मतलब है भावो धातु अर्थ। जो धातु का अर्थ होता है उसको भाव बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए धातु है खाद, खाद मतलब खाना, तो खाना हुआ भाव, तो उसका अर्थ है उसे कोई भाव बोलते हैं। अब भावे प्रयोग का मतलब हुआ कि जब कोई वाक्य है जिसमें फोकस कर्ता पे नहीं है और ना ही कर्म पर है, फोकस सिर्फ क्रिया पर है, क्रिया के अर्थ पर है, तो उसको भाववाच्य बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे पहले हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, कर्तृवाच्य। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो इसमें करता है राम और फोकस भी राम पर है। जो मतलब एक संस्कृत में हम इसको बोलते हैं उक्त, उक्त अनुक्त। उक्त मतलब फोकस, हाईलाइट। तो राम ने खाना खाया, राम हाईलाइट हुए, राम उक्त हुए, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में बोलता हूं कि खाना राम के द्वारा खाया गया, तो यहाँ पे कर्म जो है, जो खाना है, वो उक्त हो गया, वो फोकस पे हो गया, हाईलाइट हो गया। इसको हम बोलेंगे कर्मणि वाच्य, पैसिव वॉइस। अब तीसरा सेंटेंस समझिए, राम की हे राम खाना खा लो। हे राम खाना खा लो। तो अगर इस पे थोड़ा सूक्ष्म विचार करें, यहाँ पर हे राम तो संबोधन है, वो तो आप साइड छोड़ दीजिए। खाना खा लो, क्रिया पर यहाँ पर फोकस है, खा लो, खाना खा लो, समझ रहे हैं? कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षम। तो यहाँ पर क्रिया पर फोकस है, इसको भाववाच्य बोलते हैं। यहाँ कर्ता पे फोकस नहीं है, कर्म पे फोकस नहीं है।
तो सरल शब्दों में इसको भाववाच्य बोलते हैं जब धातु का अर्थ ही प्रोमिनेंट हो सेंटेंस में। हम्म, ठीक है। तो मतलब अब जैसे इसमें लिखा है कि आत्मपद का बस प्रथम एक पुरुष वचन होता है और बाकी प्रत्यय यूज ही नहीं होंगे इसमें जब भावे हाँ, जब भाववाच्य को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो वही प्रयोग होता है। 1.1 आत्मपद। आत्मपद प्रथम पुरुष एक वचन। गॉट इट प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। पर्सनली ये मुझे समझने में काफी टाइम लग गया था। 2-3 साल तो आराम से लग गए थे सिर्फ इतना पॉइंट समझने में, क्योंकि हमारे गुरुजी अपने स्टाइल से पढ़ाते थे तो, और पूछने की हमारी हिम्मत होती नहीं थी। तो मुझे तो बहुत टाइम लगा था ये पकड़ में आने में। आई थिंक 4-5 साल लग गए थे मुझे इस पॉइंट को समझने में। प्रभु जी आपका तो कोर्स ही 4-5 साल का था। हाँ, तो उसके बाद 2-3-4 साल निकल गए फिर समझ में आया था। अच्छा, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही चर्चा करते हुए। तो शब कृष्ण धातु के, चलिए शुरू करते हैं। तो हर धातु के 180 रूप बनेंगे। तो भू धातु है हमारा, भू प्लस प्रत्यय है तिप। ठीक है, शुरू से हम लेते हैं ना, एक एक करके हम प्रत्यय लेते हैं और फिर रूप बनाते जाते हैं। तो भू और तिप। अब आप ध्यान दीजिए, पहला सूत्र है शब कृष्ण धातु के। सो पहला सूत्र है शब कृष्ण धातु के। तो शब इज अप्लाइड आफ्टर धातु व्हेन अ कृष्ण धातु का फॉलोज। कृष्ण धातु किसको कहते हैं? व्हाट इज कृष्ण धातु का? अच्युतादय शिव पंच फर्स्ट फाइव फर्स्ट अच्युताय 5। पंच फर्स्ट 5। एंड एंड शिव शिवस्य। कृष्ण धातु का। तो क्या तिप कृष्ण धातु का यस। यस प्रभु जी। है क्योंकि ये अच्युत है। तो यहाँ सूत्र कह रहा है, द सूत्र इज सेइंग कि इफ देर इज अ धातु एंड अ कृष्ण धातु का फॉलोइंग, देन वी विल इंसर्ट शब्द इन बिटवीन। तो हम शब्द को बीच में ऐसे ले आएंगे। प्रभु जी अगर सबको कंफर्टेबल हो तो देवनागरी में हो सकता है। नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में करने में फायदा ये है कि क्योंकि देवनागरी में क्या है, वो सारे मात्राएं जुड़ जाती हैं तो वो समझने में थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश में हर एक लेटर अलग अलग होता है ना, तो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। प्रभु। हम्म। तो धातु है, प्रत्यय है, कृष्ण धातु का, तो हमने बीच में डाला शब्द। अब इस ये जो यहाँ वृत्ति और अमृता लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है, पर हम थोड़े बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब धातोरन्तस्य गोविंदः प्रत्यय 289। द फाइनल वर्ण ऑफ अ धातु, यहाँ फाइनल वर्ण है उराम। तो सूत्र कह रहा है कि द फाइनल वर्ण ऑफ अ धातु टेक्स गोविंद व्हेन अ प्रत्यय फॉलोज। जब कोई प्रत्यय आगे होता है तो धातु के अंतिम अक्षर का गोविंद हो जाएगा। गोविंद हो जाएगा। गोविंद की क्या संज्ञा होती है? क्या सूत्र है गोविंद? उद्वे ओ। नहीं, पूरा बोलिए। इद्वे से ए, उद्वे से और, इद्वे से अर, ऋद्वे से अल, गोविंद संज्ञा। तो अभी इसके आगे भी सूत्र है। हाँ, तो हम इसको गोविंद कर देते हैं तो ऊ का बन गया ओ, क्योंकि इसके आगे एक प्रत्यय है। अब 290 सूत्र 290 कहता है अपितु कृष्ण धातु को निर्गुण। एनी कृष्ण धातु का
दैट इज नॉट पृथु इज निर्गुण। अगर कोई कृष्ण धातुक प्रत्यय है जो पृथु नहीं है, पृथु मतलब पित पृथु, जिस प्रत्यय में प इंडिकेटरी लेटर है उसको बोलते हैं पृथु, और जिस प्रत्यय में प इंडिकेटरी लेटर नहीं है उसको हम पृथु नहीं कहेंगे। तो अब ये सूत्र कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रत्यय है जिसमें प राम इंडिकेटरी लेटर नहीं है तो हम उसको निर्गुण मान लेंगे, हम उसको निर्गुण मान लेंगे। एक तो हमने निर्गुण पढ़ा था नित निर्गुण, एक तो वो संज्ञा हो गई, और एक दूसरी संज्ञा ये है कि अगर कोई कृष्ण धातुक है और पृथु नहीं है तो उसको भी हम निर्गुण कहेंगे। ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है निर्गुण की। एक निर्गुण हुआ नित निर्गुण, जिसमें ङराम इत है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग है निर्गुण की, कृष्ण धातु जो पृथु नहीं है उसको भी हम निर्गुण कहेंगे। अब तो हमारा ये हो गया, गोविंद हो गया। अब ये श और प हट जाएंगे, है ना, इंडिकेटिव लेटर्स को हम नहीं लेते, बचा अ। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लाएंगे संधि ओ अव, ओ अव औ आव, राइट, ओ अव। तो ओ अव हो गया, और बस हमने इसको विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम ज्वाइन कर दिया तो भवती, भवती बोलते ही रहते हैं, बन गया भवती। तो इस तरह से बनता है भवती। आइए दूसरे प्रत्यय पे चलते हैं। भू प्लस तस, तिप्त संति है ना, तस। तो दोबारा हमने लगाया शब, शब कृष्ण धातु के से, क्योंकि तस कृष्ण धातु प्रत्यय है। तो पुनः हमने सूत्र लगाया धातुरंतस्य गोविंदः प्रत्यय, सूत्र 289। प्रत्यय बाद में रहने से गोविंद हो जाएगा धातुरंतस्य अंत। तो ओ हो गया, ओ अब हो गया, तो ये बन गया भवतस। और सर राम और विष्णु सर को विष्णु बदान्ते, भवतः भवतः, भवती भवतः, पठति पठतः। फिर 1.3 भू, प्रत्यय बोलिए फटाफट। अंति। अंति। अब लग गया शब। अब वही सूत्र लगेंगे धातुरंत से गोविंदा प्रत्यय ओ अब। अब ये हटा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ है, आराम है, और यहाँ पर दोबारा एक और आराम है। हम्म तो अब क्या करेंगे हम, क्या हम इसको दशावतार एकात्मक के मिलित्वा त्रिविक्रम कर दें, या क्या होगा? तो यहाँ पर सूत्र है 291, अराम हर ए अयोर विष्णु पदान्ते। अराम इज डिलीटेड व्हेन ए राम और अराम इज फॉलोइंग, प्रोवाइडेड द विषय इज नॉट विष्णु पदांत। मतलब अगर एक अराम है और उसके बाद में अ या ए हो, तो पहले जो अराम है वो हर हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। बस वो विष्णु पद के अंत में नहीं होना चाहिए। तो अब क्या ये शब्द का विष्णु पदांत है? नहीं, ये तो बीच में है। बीच में। तो विष्णु पदांत तो ये नहीं है, और इसके बाद अराम भी है। तो इसलिए हम इस पहले अ का लोप कर देंगे, तो ये बन गया भवंती। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, भवन्ति भवति भवतः भवन्ति। 2-1 भू, तिप्त सिप अंति, आगे सिप सिप, तिप्त संति सिप। शब का अ आ गया, वही प्रोसेस है, धातुरंत से गोविंद प्रत्यय ओ अव, क्या बन गया? भवसी। भवसी। इसी तरह से 2.2 2.3 हो जाएंगे, भवतः भवथ। अब आ जाते हैं 3.1 पे। भू मिप। अब हम ले लेते हैं शब का अ। अब धातुरंत से गोविंदा प्रत्यय ओ अव, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र आता है अ आ व मोह। अ चेंजेस टू आ व्हेन व और म फॉलोज। अगर अराम है जिसके बाद में व या म राम हो, तो अराम आराम बन जाएगा, इसका त्रिविक्रम हो जाएगा। तो इसका त्रिविक्रम हो गया, तो बन गया भवामी। भवामी। भवामी न चिरात पार्थ, है ना ऐसे, संभव भविष्यामी भवामी, संभवामी युगे युगे भवामी।
3.2 भू प्लस में वस, शब का अ, तो धातुरंत से गोविंदा प्रत्यय ओ अव। अब हम 292 हम दोबारा लगाएंगे, क्योंकि यस अ ब्रो। है इसके बाद व राम है, तो बन गया त्रिविक्रम। तो भवा, बस सर राम या विष्णु सर विष्णु जानते, भवावह। 3.3 में इसी तरह से बनेगा भवामह। भवामह, ठीक है। हम्म। प्रभु जी, ये एक्चुअली एक 331 पेज पे जैसे लिखा हुआ है, हु सत्तायाम इज अकर्मक अनेबल टू टेक अ कर्म। इसका क्या अकर्मक का क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? कई बार ही देखा है धातु पाठ में, ऐसे कई धातु के आगे लगा होता है। इसको समझाएंगे। तो अगली क्लास के लिए आप सूत्र 288 से 288 से 305, 305, फ्रॉम 288 टिल 305। और इसमें एक सूत्र के बीच में एक वो श्लोक है, ये वाला 301 जो सूत्र है, तो उसमें ये श्लोक दिया हुआ है। इसमें सारे प्रीफिक्सेस हैं, प्रपराप समन्वय, ये भी याद करना है। तो ये एक श्लोक के भीतर ही सारे प्रीफिक्सेस इन्होंने दे दिए, तो इट्स वेरी गुड। प्रपराप समन्वय निर्दुरभी, दैट मेलोडी, यदि सुदति। प्रभु जी, आप भेज देना ऑडियो फिर एक। नहीं नहीं, आप Can you पाई लेंगे। complete this in that meter, the whole sloka? क्या प्रभु? व्हाट प्रभु? Can you complete? Can you verbally complete अच्छा, this वर्बली। तो whole same? प्रपराप समन्वय निर्दुरभी, व्यधि सूदति प्रतिपर्यः, उपांगति विंशतिरेष सखे, उपसर्ग विधि कथितः कविना। तो इसमें, so it's a complete list of all the prefixes. Very nice. 20 प्रभु जी, prefixes. प्रभु जी, which meter is this? It's very amazing sound. त्रोटक, तोटक, तोटक। टोटल। इसमें इसमें सीक्वेंस चलता है, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। 12 अक्षर है एक छंद में, एक लाइन में 12 अक्षर है इसमें। श्री वेंकटेश स्तोत्र भी इसका है, ये टोटक का। हाँ, ये तोटक एक्चुअली काफी फेमस है। अपना वो है ना, शची सुताष्टकम, जो भक्ति चारू महाराज जी का फेमस मेलेडी है, वो भी तोटक छंद है। तो काफी वेल नोन छंद है। फिर कौन सा वो भक्ति चारू महाराज का था? क्या सची, क्या है? सुत नव अष्टकम। सची सुताष्टकम, नवगौरवरम नव नव। गौरवरम। पर उनका मेलेडी अलग है ना, उनका ट्यून अलग है वो, उनकी वो ट्यून मेरे को भी ध्यान नहीं आ रही। टोटक में नहीं है। हाँ है तो सेम वो, पर वो गाते अलग तरीके से हैं। वो काफी फेमस मेलेडी है महाराज जी की। मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, बहुत फेमस। नवगौरवरम नवपुष्पशरम नहीं 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 नहीं, नवभावधर। महाराज ऐसे नहीं गा वो। अलग ट्यून में टोन में गाते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, अलग ही है वो। मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी वो। खैर, जो भी। तो ये सूत्र आप कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। और यस प्रभु, आप सुना दीजिए अपने सूत्र मानस जी।
प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने नहीं याद कर पाया ड्यू टू सम अरे सर्विसेज। हमने तो लास्ट क्लास मिस ही कर दी थी, कर देना चाहिए था तब। यस प्रभु जी, वो प्रभु जी वो ना, वो कोई यूथ फेस्ट हमारा यहाँ पे इस बारी पहली बार ही हुआ, सो इतना बिजी हो गए इस बार। आगे से मैं अमोघ जरूर अमोघ लीला प्रभु को इनवाइट किया ना आप लोगों ने? हाँ वो आए थे तो बड़ा काम हुआ प्रभु जी, बड़ा थक ही गए मैं तो तो कर ही नहीं पाया प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंबाइंड जितने आज भी बताएं वो सब भी यस प्रभु जी, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास प्रभु जी? आप कर लीजिए याद, आप चिंता मत कीजिए। ठीक। जब भी होगी बी प्रिपेयर्ड। प्रभु जी मेरे ख्याल से मेरा ना, वैसे मैंने आज ना मायापुर के लिए निकलना था और वर्णाश्रम कॉलेज फाउंडेशन, सो वहाँ पे फिर मेरा रीस्केड्यूल हो गया, फ्लाइट कैंसिल होगी, तो आई विल बी लीविंग ऑन 9th। सो मेरा 9th मैं कोशिश करूँगा, वैसे समय मिल जाता है तो उसमें अच्छी तरह याद करके, तो अगर उस दिन हो पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रात को ही पहुंचूंगा ऑलमोस्ट मायापुर, ठीक परसों। है, देखते हैं। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी वो तो फिर। कर सकते हाँ, हैं? अनवय। यस प्रभु जी। नहीं, मेरी अभी 9 बजे दूसरी क्लास है। आप अभी कार्तिक सेलिब्रेट कीजिए। थोड़ा कार्तिक टाइम। मतलब कार्तिक के बाद ही कर पाएंगे ये चीजें? नहीं नहीं करेंगे। अभी मेरा एक्चुअली 9 o'clock दूसरा एक है, तो थोड़ा सा गैप, 10 मिनट। डन प्रभु, यस। जी। Thank you, bro. हरे कृष्ण। Thank you, bro. हरे कृष्ण, धन्यवाद।